Welcome dear students again in this my channel MSZ classes. I will take today here binomial theorem which is being taught in the University Polytechnic AMU Aligarh and also in class 11th and 12th of UP board and CBSE boards and other boards. So please see this thing very carefully and be very attentive while I am talking about the binomial theorem. So without wasting time, let us start. Actually, before starting binomial theorem, I would like to introduce a special notation called factorial to you. That what is a factorial? That what is a factorial notation is. Factorial notation is like this in your book, or you can also represent it by this method. How it is read, this is factorial 3 or this is also factorial 3. You can write like this or like this. Then what does this factorial means is its factorial means is that is equal to 3 into 2 into 1, that is equal to 6. What is factorial 4? This or factorial 4 this, that is equal to 4 into 3 into 2 into 1, that is equal to 24. What is factorial 5 means? Or like this, that is equal to 5 into 3 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And to this I can write factorial 4 here. So to this factorial 5 I can write 5 into this 5 into factorial 4. To this factorial 4, how I can write here? I can write it, this is factorial 3, so this much part will be factorial 3. So this can be written as 4 factorial 3. Factorial 2, how I will write? Factorial 2, I will write 2 into 1. So therefore this factorial 3, to this factorial 3, I can write this is factorial 2, 3 into factorial 2. So this is 3 into factorial 2. So I reach here on a conclusion that if I am given factorial n or factorial n like this, then this is equal to n minus 1, n minus 2, and n minus 3, and so on up to when I reach decreasing by 1. देख लीजिए यहाँ पर factorial 5 है, 5 से 1 माइनस हुआ 4, 4 से 1 माइनस हुआ 3, 3 से 1 माइनस हुआ 2, 2 से 1 माइनस हुआ 1. तो जब मैं 1 पर पहुंच गया तो मुझे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मिल गई इन सबका मल्टीप्लाई करके. दिस इज इक्वल टू योर हाउ मच 120. Similarly, I can get factorial n or this factorial n values like first n, then n minus 1, इसमें से एक घटाइए n minus 2, इसमें से एक घटाइए n minus 3. इसी तरह से इसमें सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए जब तक आप 1 पर ना पहुंचे और इससे आपको कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके मिल जाए वैल्यू. तो वो वैल्यू आपकी n फैक्टोरियल n की होगी. आई होप ये आपकी चीज समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, ये है या तो ये है और फैक्टोरियल 3 है. ये पढ़ा कैसे जाएगा, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, इसको किया जाएगा फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल n. मैं इसको इस तरह से या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. चलिए अब बायनोमियल थ्योरम शुरू करते हैं. लेकिन बायनोमियल थ्योरम शुरू करने से पहले आपको एक और कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन क्या है? अगर मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर n डिफरेंट थिंग्स मेरे पास हैं और इसके अंदर से मैं कुछ सपोज कीजिए r चीजें सेलेक्ट करता हूं और उनको डिफरेंट अरेंजमेंट्स में रखता हूं, तो वो हर एक अरेंजमेंट जिसमें वो उन डिफरेंट थिंग्स को रखता हूं जबकि वो रिपीट ना हो अरेंजमेंट, तो मैं उन अरेंजमेंट्स को, टोटल अरेंजमेंट्स को परमुटेशंस कहता हूं या एक अरेंजमेंट को एक परमुटेशन कहता हूं. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. सपोज कीजिए आपके पास 3 अल्फाबेट हैं A, B, C. These are 3 different things. I take all of them
and arrange in different ways like A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, B, सॉरी यहां पर C आएगा, C, B, A. How many arrangements I did? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I can arrange these three different alphabets A, B, C in 6 ways, and each way is known as permutation. This one permutation, one permutation, one permutation, one permutation, one permutation, one permutation. In total 1, 2, 3, 4, 5 and 6 permutation. I can make three objects, taking all of them together. So this is known as your permutation. आगे एक और एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि सपोज कीजिए मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स गिवन हैं और मुझसे कहा गया कि इसमें आप 3 डिजिट के नंबर बनाइए, डिफरेंट कितने बना सकते हैं, जबकि रिपीटिशन इसमें से किसी भी डिजिट का अलाउड नहीं है। तो जो मैं अरेंजमेंट्स बनाऊंगा इन टोटल विल बी नोन एज टोटल परमुटेशंस, और एक अरेंजमेंट को मैं एक परमुटेशन कहूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज कीजिए मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस है, ये 100 है। मैं यूनिट डिजिट से भरना शुरू करता हूं। कितने ऑप्शंस मेरे पास हैं यहां पर भरने के लिए, कितनी चॉइसेस हैं, मैं इसमें से कोई भी एक नंबर ले सकता हूं, चाहे मैं ये ले लूं पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस, पांचवी चॉइस, यानी कि आई हैव टू फिल अप दिस यूनिट प्लेस बाय 5 चॉइसेस। सो मेरे पास यहां पर टोटल कितने हो गए ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस या चॉइसेस, 5 चॉइसेस। अब मैं सपोज कीजिए यहां पर मैंने भर दिया 3, ओके। अब मैं 3 को दोबारा यूज नहीं कर सकता क्योंकि 3 और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो मेरे पास इस टेंस प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शंस बचे, 3 तो मैंने यूज कर लिया, ये तो मैं यूज कर नहीं सकता। तो मेरे पास ऑप्शन बचे 1, 2, 3, 4। इस टेंस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन बचे, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने यहां पर भर दिया 5, तो अब मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी मैं नहीं भर सकता। अब 100 प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है 1, 2, 3। तो मेरे पास यहाँ टोटल ऑप्शन हुए, टोटल चॉइसेस हुई 3। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 1 भर दिया, अब मेरे पास 2 और 4 बच गया, कोई बात नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर एक डिजिट आई 1, 5, 3, या मैंने एक 3 नंबर की डिजिट क्रिएट कर दी 1, 5, 3, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे ये पता लगाना है कि इन 5 डिजिट्स में से डिफरेंट तरीके से मैं चॉइसेस लेकर के टोटल कितनी डिजिट्स बना सकता हूं जिसमें 3 डिजिट्स हो, कितने नंबर्स बना सकता हूं 3 डिजिट्स का। तो उसके लिए ये है कि अगर मैं 5 में से 3 चूज कर रहा हूं तो उसके लिए मेरे पास जो चॉइसेस हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। देयरफॉर टोटल 3 digits numbers to those I can make is equal to 5 into 4 into 3, that is equal to 60. So by using 3 digits, these 5 digits, out of them using 3, I can make at least 60 numbers, and this 60 is known as your 60 permutations I can do. So this is what about your 60 permutations. Now I want to change it into the factorial notation. How I will change it into factorial notation? So how I can change this into factorial notation, that is given to me 5 into 4 into 3। यहां पर 1 तक नहीं पहुंचा है, फैक्टोरियल में 1 तक पहुंचना चाहिए, तो मैं इसको यहां पर डिनोट कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 into 1 से, और डिवाइड भी कर देता हूं इसको 2 into 1 से। नाउ
this is factorial 5 and this is factorial 2. So I can say here the permutations are equal to 60 and that is equal to factorial 5 upon factorial 2. Okay. Now in general, how do I represented it? That I was given 5 total different things and I choose them here from 3. Taking 3 out of these 5, I can make 60 permutations. And this is given by factorial 5 upon factorial 2. I again want to bring it in here 3, then I can write it as factorial 5 upon factorial 5 minus 3. अब मेरा सही हो गया कि 5 चीजें थी मेरे पास, 3 मैंने इसमें से चूज की और 60 परम्यूटेशन आई कैन मेक, दैट इज 5 मेरे पास चीज थी और 3 मेरे पास यहां से मैंने चूज की. नाउ आई रिप्लेस इन जनरल दिस 5 बाई n and this 3 by r. Then what will happen? NPR is equal to factorial 5 की जगह n upon यहां पर factorial n minus r. So to this thing that is 60, that is 5p3, I can represent with a general formula for permutation. To this you have to keep in your mind. Therefore, this is very important formula for permutations, that you are given n different things, you are asked to choose r different things and make different different arrangements out of this n thing. Then you can find that how many permutations are possible there, that you can make NPR factorial n upon n minus r. Okay, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा और दोबारा से इसको देखिए आप वीडियो रिवाइंड करके, तो आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा. अब आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. देखिए, कॉम्बिनेशन इस परमुटेशन से थोड़ा डिफरेंट है. इसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि आपने थिंग्स को किन ऑर्डर्स में रखा हुआ है. अगर आप एक प्लेस को भी चेंज करते हैं किसी चीज का, तो वो एक परमुटेशन मान लिया जाएगा जो आपको नया मिला. लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है. इसके अंदर कॉम्बिनेशन ये है कि आपने 3 चीजों को या 4 चीजों को आउट ऑफ 5 और आउट ऑफ m में से 8 चीजों को आपने किस तरह से लिया, रखा उनको किस तरह से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनका कॉम्बिनेशन कि आपने कितना लिया वो इंपॉर्टेंट है. तो हम जैसे सपोज कीजिए, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ABC, ये मैंने लिया 3 का, 3 में से 3 लेकर के मैंने बनाया था ACB, BAC और BCA, CAB और यहां पर आपका आ गया था CBA. ये 6 परमुटेशंस थे, 1 2 3 4 5 6. लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इनकी प्लेस वैल्यूज को यहां पर मैं कंसीडर ना करूं, तो ये देखा जाए कि कॉम्बिनेशन है 3 चीजों का, जिसमें ABC, 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 इनको मैं ABC ABC ही लेकर के चल रहा हूं. इसके अंदर कोई नई चीज तो ऐड हुई नहीं. देयरफॉर इन टोटल कॉम्बिनेशन मेरा ये एक ही माना जाएगा. कॉम्बिनेशन इज 1. सबका मिलाकर 6 परमुटेशन हुए, लेकिन कॉम्बिनेशन एक है. तो इसका कॉम्बिनेशन है ABC. परमुटेशन क्या है कि मैंने इनको अलग अलग करके इनकी प्लेस वैल्यू को या इनके ऑर्डर को डिफाइन कर दिया. अब देखिए, मैंने यहाँ 3 से 3 लिए, तो कितने परमुटेशन बने थे मेरे, यहां पर देखिए बनेंगे 3p3. 3 ऑब्जेक्ट्स में से मैंने 3 को कंबाइन किया, वैल्यू निकाली इसकी, that is equal to factorial 3 upon factorial 3 minus 3, जो मैंने अभी आपको बताया था. NPR is equal to factorial n upon factorial n minus r. ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला इसका.
तो इसके हिसाब से ये हुआ दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 यहां मान लीजिए आप इक्वल टू 1 है। मैं अभी आपको इसका रीजन दूंगा कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों है। ठीक है, तो दैट इज आई कैन से हियर इक्वल टू फैक्टोरियल 3। तो कॉम्बिनेशन मेरे बने यहाँ पर 6 फैक्टोरियल 3 का अगर आप वैल्यू निकालें 3 into 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 6 बन भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर परमुटेशन तो सही है, लेकिन कॉम्बिनेशन कह रहा है 1। कॉम्बिनेशन को अगर मैं C से डिनोट करूं तो 3C3 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3P3 फैक्टोरियल 3 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, जैसे आपका यहां पर ये 3C3 इज इक्वल टू 3P3। अब ये तो 3P3 तो फैक्टोरियल 3 के बराबर है, यानी कि इस फैक्टोरियल 3P इस परमुटेशन 3P3 को मैं डिवाइड कर दूं कहां से, और फैक्टोरियल 3 से, तो ये मेरी इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स 3P3 अपॉन फैक्टोरियल 3 it will be equal to 3C3. Again I can write it factorial 3 upon factorial 3 that is equal to 1. इससे कैंसिल हो गया पूरा। तो इस तरह से मैं यहां पर ये कह सकता हूं इन जनरल कि अगर मैं यहां NCN लूं, NCN that is equal to NPN upon factorial n, right? अगर मैं यहां पर R चीज लेता हूं तब कैसे होगा? इसमें से मैं R सेलेक्ट करता हूं N में से, तब कैसे होगा? तो सबसे पहले अगर मैं इसमें R का कॉम्बिनेशन बनाना चाहूं, यहां पे मान लीजिए NCR हो, तो उससे पहले आपको NPR की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पर मुझे मालूम है NPR इज इक्वल टू हाउ मच, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये मुझे मालूम है। अब मैं यहां पर निकालना चाहता हूं NCR की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि फैक्टोरियल ये इसकी वैल्यू की बराबर होनी चाहिए। उसके लिए मैं करूंगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि इस टोटल को मैं फैक्टोरियल r से और डिवाइड कर दूंगा यहां पर, दैट इज इक्वल टू इसके इक्वल आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए n इज इक्वल टू 3 और r इज आल्सो इक्वल टू 3 करिए, तब यहां पर NC3 कितना होगा, ये होगा आपका यहां इसके इक्वल फैक्टोरियल 3 n की वैल्यू है, r की वैल्यू है भी यहां पर 3 है, फैक्टोरियल 3, और ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1। सो इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 1, क्योंकि फैक्टोरियल 0 यहां से आएगा तो उसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी, वो आपको वहां पर बताया था। सो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, या मैं ये भी कह सकता हूं कि NPR अपॉन फैक्टोरियल r, ये भी मैं कह सकता हूं। तो यहां से मेरी ये इसकी वैल्यूज आई इस तरह से। अब इसके अंदर अब बाइनोमियल थ्योरम करने से पहले थोड़ी सी कुछ और कोएफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहां पर मुझे दिया है NCR की ये वैल्यू है, मेरा ये फॉर्मूला है, मैं यहां पर वैल्यू निकालना चाहता हूं NC0 की, दैट इज R इज इक्वल टू 0। व्हाट इट विल गिव मी, R की जगह यहां पूरे में 0 रख दीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि n माइनस 0, दैट विल गिव मी फैक्टोरियल n अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल n में से 0 गया तो n ही बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इट विल गिव मी 1। देयरफॉर यहां से मेरे पास एक वैल्यू आ गई, NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब मैं निकालना चाहता हूं NC1 की वैल्यू। NC1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, r की जगह 1 रख दीजिए इस फार्मूले में, दैट विल गिव यू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह 1 रखना है, यहां पर आया 1 और यहां पर आया फैक्टोरियल n माइनस 1। ओके, दैट व्हाट इट विल गिव मी,
फैक्टोरियल 1 इज 1, दैट इज फैक्टोरियल n, इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n बाहर निकाल के फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इससे कैंसिल हो गया, दैट विल बिकम n। Therefore, I can write here nc1 is equal to n. Again, I want to calculate nc2. How I will calculate? With this formula. n की जगह फैक्टोरियल n की जगह n ही रहेगा, r की जगह 2 तो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2। r की जगह मैंने 2 रख दिया। कैलकुलेट करिए, तो यहां से हो गया आपका, इसको बाहर निकालिए n माइनस 1 और यहां पर बचेगा अंदर फैक्टोरियल n माइनस 2 और नीचे बचेगा आपका, इस 2 का वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 और यहां पर नीचे फैक्टोरियल n माइनस 2। तो इससे पूरा कैंसिल हो गया, यहां पर बचा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। Therefore, I can write here nc2 is equal to n into n minus 1. Similarly, I can calculate यहाँ पर आपकी many values। सपोज कीजिए I want to calculate NCN की वैल्यू फाइंड करिए, that it will give me factorial n अपॉन यहाँ पर r की जगह n फैक्टोरियल n और यहाँ पर भी r की जगह n, that will give me n minus n। कैलकुलेट करिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, दैट इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया 1। सो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि NCN इज आल्सो इक्वल टू 1। सो व्हाट कंक्लूजन आई ड्रा फ्रॉम हियर, दैट NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। ये भी आप याद रखें। सो हम डिफरेंट कोफिशिएंट्स या डिफरेंट वैल्यूज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा या ये रहेगा, ठीक। सो ये यहां पर हम NCR से NC0, NC1, NC2, NCN, ये आपको बायनॉमियल थ्योरम में जब आप पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर जरूरत पड़ेगी। बायनॉमियल थ्योरम नाउ, बायनॉमियल में y means 2, that is there are two algebraic functions which are connected either by plus sign or minus। सपोज कीजिए a plus b और a minus b, there are two different brackets, two different algebraic functions a and b joined by either plus sign or minus sign। सपोज कीजिए इसका कोई एक्सपोनेंट आपको दिया हुआ है a प्लस बी, मैं थोड़ी देर के इसके लिए भूल जाता हूं, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी। ओके, ये तो आपको मालूम है। अगर ये गिवन हो a प्लस बी रेज टू द पावर 2, इसका स्क्वायर हो तो भी आपको मालूम है, तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर दिस वैल्यू। अगर आपको यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ हो तब भी आपको मालूम है, तब भी आपको मालूम है क्या है आपका इसका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपको मालूम है। अगर आपको यहाँ पर a प्लस बी रेज टू द पावर 4 दिया हुआ हो तब आप कैसे करेंगे, आप करेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी का क्यूब, इसकी वैल्यू यहां से ये रखेंगे, a प्लस बी है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, निकालेंगे तो आपका a प्लस बी 4 निकल जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर आपको यहाँ पर a प्लस बी रेज टू द पावर 50 दिया हो तब आप कैसे निकालोगे, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बहुत सारे पेजेस चाहिए या आपको बहुत सारा उसी के साथ टाइम भी चाहिए, पेजेस भी चाहिए और काफी लेबोरियस काम हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखने के लिए जो हम रूल्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम बायनॉमियल थ्योरम कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर यहाँ जो एक्सपेंशन मैंने 1 2 3 किए उसके अंदर एक देखने वाली बात है क्या, कि अगर बायनॉमियल है, यहाँ पर दो चीजें हैं,
डिफरेंट फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है, और बीच में प्लस या माइनस से जुड़े हुए, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होना चाहिए, प्लस और माइनस से जुड़े हुए हो, तब जो रिजल्ट आता है एक्सपेंशन का, यहाँ जो पावर है उससे एक ज्यादा आता है। जैसे यहाँ पर a प्लस बी, ये तो बायनोमियल है, यहाँ पर स्क्वायर किया मैंने तो 3 टर्म्स आई, 1 2 3। इसी तरह से जब मैं a प्लस बी का होल क्यूब कर रहा हूं तो मेरे पास 4 टर्म्स आ रही है, 1 2 3 और 4। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल 4 करूंगा तो मेरे पास 5 टर्म आएंगे। जब मैं यहाँ पर a प्लस बी रेज टू द पावर 50 का एक्सपेंशन खोलूंगा तो मेरे पास 51 टर्म्स आएंगे। सो इन जनरल आई कैन से जो एक्सपोनेंट मुझे बायनोमियल का दिया है a प्लस बी रेज टू द पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर होगी, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1, यानी कि एक ज्यादा आएगी। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन लिखते हैं a प्लस बी रेज टू द पावर n का। देखिए एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला होगा हम उससे कितना भी पावर बायनोमियल का चढ़ा हुआ हो, रेज्ड हो, हम उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मुझे दिया है a प्लस बी रेज टू द पावर n, तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर nc0 a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर 0, ये लिखूंगा मैं यहां पर a रेज टू द पावर n माइनस 0 लिख लीजिए। ठीक है, फिर मैं प्लस का निशान लगाऊंगा, फिर लिखूंगा यहां पर nc1, फिर मैं यहां पर लिखूंगा nc1 और a रेज टू द पावर n माइनस 1 b रेज टू द पावर 1। नेक्स्ट टर्म में यहां पर लिखूंगा nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b रेज टू द पावर 2। तीसरी नेक्स्ट टर्म लिखूंगा मैं यहां पर nc3 a रेज टू द पावर n माइनस 3 b रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट टर्म लिखूंगा मैं यहां पर nc4 a रेज टू द पावर n माइनस 4 b raised to the power 4 and so on. I will keep on writing. rth टर्म लिखूंगा मैं इसके अंदर ncr a raised to the power n minus r into b raised to the power r, और इसके अंदर मैं nth टर्म लिखूंगा ncn a raised to the power n minus n यानी कि 0 into b raised to the power n। यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ncn a रेज टू द पावर 0, चूंकि n माइनस n इज 0, और b रेज टू द पावर n। तो दिस इज माय एक्सपेंशन एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जरा आप इसके अंदर यहां पर लीजिए a प्लस बी रेज टू द पावर 2, मैं वो वाला फॉर्मूला यहां पर वेरीफाई करना चाहता हूं, विच इज योर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहां पर 2 है, तो पहला टर्म यहां पर आएगी nc0, यानी कि 2c0 a रेज टू द पावर 2 n माइनस 2 माइनस 0 दैट इज 2 इंटू b रेज टू द पावर 0। आगे लिखिए, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी इसके अंदर 2c1 a raised to the power 2 minus 1 into b raised to the power 1 प्लस तीसरी टर्म इसके अंदर आएगी 2c2 और a raised to the power 2 minus 2 into b raised to the power 2। अब यहां पर 2 आ गया, इससे आगे में जा नहीं सकता, तो कितने टर्म हुई यहां पर 1 2 और 3 टर्म्स हुई यहां पर। अब 2c0 की वैल्यू फाइंड करिए, अभी मैंने बताया था आपको nc0 इज इक्वल टू 1, तो 2c0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया यहां पर, और ये हो गया a स्क्वायर, और यहां पर b रेज टू द पावर 0 ये भी 1 हो गया इंटू 1 प्लस 2c1 की वैल्यू फाइंड करिए। आपके पास 2c1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन ये वाला ncr वाला r फैक्टोरियल n माइनस r। तो n की जगह 2 है, c की जगह 1 है, तो ये आपका ncr वाला फॉर्मूला था।
और अगर यहाँ पर n की जगह 2 हो और r की जगह 1 हो तो क्या वैल्यू निकलेगी? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 माइनस 1। सो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू लिखी 2 इंटू 1 अपॉन ये 1 1 हो गए 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। यानी कि आपका 2c1 इज इक्वल टू 2, ये मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर इसकी जगह 2 आ जाएगा, a की पावर 2 माइनस 1 यानी कि a और b की पावर 1 यानी कि यहाँ पर b, और 2c2 जैसे मैंने भी आपको बताया था n से n की वैल्यू भी 1 होगी तो 2c2 की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर आपका आ गया 1 इंटू a रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2 यानी कि 0, a रेज़ टू द पावर 0 और b की पावर 2। तो फाइनली फॉर्मूला मेरे पास बना यहाँ पर a स्क्वायर एक्सपेंशन बना ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर विच इज ट्रू। यहाँ से जो आपने पहले से हाई स्कूल से याद किया हुआ है, यहाँ से ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं। थर्ड को भी हम यहाँ पर क्यूब को भी जरा वेरीफाई कर ले। अगर यहाँ पर आपका क्यूब हो तो क्या होगा? अब इस एक्सपेंशन को मैं लिखूंगा यहाँ पर आपका आ गया क्यूब, तो पहले n की जगह यहाँ पर 3 है तो 3c0 a रेज़ टू द पावर 3 माइनस 0 इंटू b रेज़ टू द पावर 0 प्लस 3c1 a रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 b रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3c2 a रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू b रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3c3 a रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू b रेज़ टू द पावर 3। अब 3 से आगे तो जा नहीं सकता मैं, तो यहाँ पर 3c0 nc0 1 है, ये 3 यहाँ पर आ गया a क्यूब, b0 की वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू भी 1 प्लस यहाँ से 3c1 की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकालिए आप NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो निकालिए यहाँ से 3c1 की वैल्यू, वो आपकी आएगी कितनी? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि फैक्टोरियल 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 3 आई। ओके, तो मैं यहां पर इसकी जगह 3 लिख सकता हूं, 3 a की पावर 2 3 माइनस 1 और b की पावर 1। अब 3c2 की वैल्यू निकाली, 3c2 में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर r की जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह n माइनस r यानी कि 3 माइनस 2, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 को फिर इसी तरह से लिखते हैं तो अगेन फिर 3 आएगी, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर लीजिए प्लस यहाँ पर आपका इसके लिए 3 माइनस 2 दैट इज a रेज़ टू द पावर 1 इंटू b रेज़ टू द पावर 2। अब 3c3 जैसे NCN की वैल्यू 1 आई थी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर a की पावर 0 दैट विल बिकम 1, तो 1 इंटू b क्यूब विल गिव मी b क्यूब। तो यहाँ पर मेरा ये एक्सपेंशन, ये रूल क्यूब के लिए भी सही है। तो इस तरह से अब मेरे पास अगर 50 पावर्स हो तो मैं लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब सपोज कीजिए आपको फाइंड करना है a प्लस b रेज़ टू द पावर 50 का एक्सपेंशन बना, तो लिख दीजिए सिंपली दैट इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ दिस 50c0 a रेज़ टू द पावर 50 माइनस 0 यानी कि 50 इंटू b रेज़ टू द पावर 0 यानी कि 1। तो मैं ये लिख देता प्लस 50c1 a रेज़ टू द पावर 49, यहाँ पे n की जगह 50 होगा, माइनस 1 49 b रेज़ टू द पावर 1 यानी कि b प्लस 50c2 a रेज़ टू द पावर 48 इंटू b रेज़ टू द पावर 2 प्लस 50c3 a रेज़ टू द पावर 50 में से 3 घटाइए 47 और b रेज़ टू द पावर 3 प्लस 50c4 50 में से 4 घटाइए दैट इज योर a रेज़ टू द पावर 46 इंटू b रेज़ टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4
एंड सो ऑन। लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म होगी आपकी 50, C 49, A raised to the power 50 minus 49 that is 1 into B raised to the power 49। लास्ट टर्म होगी आपकी 50C 50 into A raised to the power 50 minus 50 into B raised to the power 50। तो ये 50 माइनस 50 जीरो हो जाएगा, तो A की पावर जीरो हो जाएगी, तो A की पावर जीरो मीन्स 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और इस B3 को यहाँ B50 का लिखता हूँ, B50 दैट विल बी योर टोटल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर 50C0, 50C1, 50C2, 50C3, 50C4, 55, 50C50, 50C49 की वैल्यूज आप कॉफिशिएंट्स हैं, ये कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको याद करने का तरीका क्या है कि पहला टर्म इसके अंदर आप ये माने दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। जब ये एक्सपेंशन आप खोलेंगे तो पहले ए टर्म के ऊपर आप यही पावर चढ़ाएंगे जो ये है, या n-0 करके चढ़ाएंगे जो कि आगे मुझे यूज करना है, और इस सेकंड टर्म जो एल्जेब्रिक टर्म है इसकी पावर 0 रहेगी, यानी कि जो r की वैल्यू है। ठीक, फिर इसके बाद NC1, तो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर ये है इसकी वैल्यू n-1 हम पावर चढ़ाएंगे और b की पावर वही देंगे जो हमारी ये होगी। जैसे मैंने यहाँ पर rth टर्म लिखी है, NCR इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n-r, और b की पावर जो सेकंड टर्म है यहाँ पर उसकी पावर 8 है, और nth टर्म बिल्कुल आप इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। आई होप मेरी आपकी समझ में आ गया होगा बायनोमियल थ्योरम हम कैसे पढ़ते हैं या करते हैं, या बायनोमियल एक्सपेंशन हमारा क्या है। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू और ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन रटना होगा या इसको समझना होगा कि NC0 A रेज़ टू पावर n B रेज़ टू पावर 0। एक चीज और देखिए इसके अंदर, A की पावर सबसे पहले यहाँ हाईएस्ट है, B की पावर लोएस्ट है 0, लेकिन नेक्स्ट टर्म में A की पावर 1 कम होगी लेकिन B की पावर 1 इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट टर्म की जो पावर्स एक्सपेंशन में है वो डिक्रीज होती जाती हैं, लेकिन सेकंड टर्म की पावर फाइनली आगे चल के इसके अंदर इंक्रीज होती जाती हैं, और फाइनली ये आपका जो पहला टर्म है A, इसकी पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 1 में चेंज हो जाएगा, और जो सेकंड टर्म है B, उसकी हाईएस्ट पावर n यहाँ पर आ जाएगी, जो आपने मेरे पीछे फॉर्मूले किए हैं उसके अंदर भी उसको वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं कि A और B की पावर किस तरह से घट बढ़ रही है। अगर फर्स्ट टर्म है तो उसकी सबसे पहले हाईएस्ट है फर्स्ट टर्म के अंदर ही, और उसके बाद सेकंड टर्म में 1 कम हो गई, थर्ड टर्म में दोबारा कम हो गई, और B की पावर सबसे पहले 0 थी, सेकंड टर्म की जो B है यहाँ पर उसकी पावर 0 थी, नेक्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में वो 1 बढ़ी, फिर 1 बढ़ करके वो लास्ट तक पहुंची। ये आपको इस बायनोमियल थ्योरम को याद करने का तरीका है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरे अंदर काफी जोश भर देता है, मैं और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड आल्सो हिट योर बेल आइकन so that whenever I upload a new video you could get instant notification। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसकी एक्सरसाइज जो VK पाराशर साहब की बुक है अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, उसका हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।